विजयवाड़ा में वजीर बल्दी नज़्म नस्क और शहरी तरक्की पी नारायणा ने कहा कि अमरावती की तरक्याती सरगर्मियों में तेज़ी आई है और बुनियादी ढांचे के कई अहम मनसूबों पर काम जारी है। उन्होंने बताया कि सड़कों, ड्रेनेज, पानी और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों की पेशरफ्त से दारुल-हुकूमत मनसूबे को नई जान मिली है। पी नारायणा के मुताबिक अमरावती के किसानों ने एक बार फिर दारुल-हुकूमत के मनसूबे पर अपने एतमाद का इजहार किया। Lands plots to landlords. Some plots actually went to in land acquisition plots areas. Some are waiting for that one, and remaining they want actually change of land. Those who want to change their plots, for them actually our CRD people are going to make a lottery on Friday, coming Friday. They decided. Immediately asked them to make a registration. Like that actually CRD took a decision. Regarding actual Amaravati works, actually either trunk roads or layout roads or iconic administrative towers 5 and assembly and high court, everything work is going on. The trunk roads will complete within 2 years, and layout roads we are going to complete within 2.5 years, and iconic towers we are going to complete within 3 years. Parallelly, many people for whom we allotted land, either universities or hotels or hospitals or banks, already they started work. As per schedule, it is going. अदुनी में सीपीएम पार्टी की दरख्वास्त पर एमआरओ ने ज़मीनों का सर्वे कराया। प्लॉट्स के लिए रकम जमा कराने वाले मुस्तहिकीन से मुताल्लिक़ तकरीबन 260 प्लॉट्स का सर्वे मुकम्मल कराया गया। इस दौरान मुस्तहिकीन को उनके मुतल्लिक़ा प्लॉट्स दिखाए गए और हर प्लॉट पर नंबर वाले पत्थर नस्ब किए गए। सीपीएम अदुनी टाउन सेक्रेटरी लक्ष्मण ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए बताया कि एमआरओ ने पार्टी को जो यकीन दहानी कराई थी उसे मुकम्मल किया गया है। మన ఈరన్న అన్న వాళ్ళు ఇచ్చిన అర్జీ మేరకు సిపిఐ పార్టీ అన్న వాళ్ళు ఇచ్చిన అర్జీ మేరకు మన తహసీల్దార్ సార్ వాళ్ళు ఈరోజు వెళ్ళమని చెప్పి అన్నారన్న. మార్నింగ్ 8 o'clock నుంచి వచ్చాం ఫీల్డ్ కి, 3 సర్వేర్లు వచ్చాము. ఆల్రెడీ అన్ని ప్లాట్స్ రాళ్ళు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఆ ప్లాట్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయని చూపిస్తున్నాం వాళ్ళ పట్టాల మీద. ఈరోజు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్టు సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే దాదాపుగా 2 నెలల పాటు కూడా ఆదోని తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు వివిధ రూపాల్లో కార్యక్రమాలు అనేటువంటి పోరాటాలు నిర్వహించడం జరిగింది. మా పోరాటానికి స్పందించి ఆదోని తహసీల్దార్ గారు ప్రత్యేకంగా దీనిపై స్పందించి ఖచ్చితంగా ఆ సర్వేలు నిర్వహిస్తాం. ప్రాంతాల్లో 2000 డీడీ ఎవరైతే కట్టారో కట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటి స్థలాలు ఇచ్చినటువంటి ఇంటి పట్టాలకు స్థలాలు చూపిస్తాం, చూపినటువంటి స్థలాలు కూడా హద్దులు కూడా చూపిస్తామని చెప్పి ఆ రోజు హామీ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. అదే రోజు మీడియా సమక్షంలో కూడా ఆ రోజు ఎంఆర్ఓ గారు ఆ రకంగా హామీ ఇవ్వడం తోటి హామీ నిలబెట్టే పద్ధతుల్లో కూడా ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చి సర్వేలు 3 సర్వేలు ఈ ప్రాంతాల్లో మేము ఏవైతే అంబేద్కర్ నగర్లో 200 డీడీ కట్టేటువంటి వాళ్ళు సుమారు 257 మంది అయితే ఉన్నారు. ఆ పట్టాల వాళ్ళందరూ కూడా रथ यात्रा के दौरान ज़ाफ़रानी झंडा लहराने पर उडुपी के डिप्टी कमिश्नर टी.के. सोरप्पा के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने का ऐलान किया गया। कर्नाटक के वजीर H.K. पाटिल ने इस हवाले से तस्दीक की। उडुपी ज़िले कांग्रेस कमेटी के लीगल एंड ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने इस वाक़े पर एतराज़ जताया और वज़ीर आला सिद्धरमैया को इस ज़मीन में ख़त लिखा है। उडुपी के MLA यशपाल सुरवना ने डिप्टी कमिश्नर को RSS का एक झंडा दिया, जिसे उन्होंने जुलूस के आगाज़ के मौके पर लहराया। कांग्रेस का कहना है कि यह अमल सरकारी मुलाजिमीन के कवायद के खिलाफ है। शहर नंदियाल के मारूफ मस्जिद कुबरा में मौलाना सैयद सगीर अहमद खान साहब की दीनी व मिली खिदमात को याद करते हुए इसाले सवाब की खुसूसी मजलिस का इनेकाद किया गया। इस नशिस्त की सदारत हाफिज़ कारी काजी मोहम्मद अमजद बादशाह सिद्दीकी ने की। मजलिस के दौरान मुकर्रीन ने मौलाना सगीर अहमद खान साहब की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की फ़िज़ा है। अब देखते रहें कि जो है रमज़ान के बाद शाबान के बाद रमज़ान, ये मुबारक महीना चूँकि आ रहा है, इस मुबारक महीने के इस्तक़बाल के लिए मजलिसुल उलमा वल अइम्मा और जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से एक अज़ीमुश्शान जलसा जो है रखा गया है। जलसा जो है इस्तक़बाल रहमान, इस्तक़बाल रमज़ान के साथ जो है कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस
ये दो जो है कौम को भी जोड़ना है, रमज़ान का इस्तकबाल करना है। हमारे जो है अलहाज एनएमडी फारूक साहब ऐसे शख्सियत हैं कि अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कड़वे की इज्तिमा के अंदर तमाम सहूलियात का जो है विज़िट करके वहाँ की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए करते हुए और गवर्नमेंट की जानिब से जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए मंजूरी करके सड़कों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए सब जो है 1.5 करोड़ रुपए, मामूली बात नहीं, 1.5 करोड़ रुपए जो है इज्तिमा के लिए जो है दिलवाए हैं। ये तो जो है हमेशा जो है जब भी तेलुगु देशम गवर्नमेंट जो आती है चंद्रबाबू नायडू साहब की जानिब से करनूल के अंदर बहुत बड़ा आलमी इज्तिमा हुआ, इसके अंदर जो है 11 करोड़ रुपए जो है इज्तिमा के लिए। आंध्र प्रदेश के नंदयाल से खबर है, यहाँ जिला कलेक्ट्रेट के PJRS हॉल अहाते में अराको कॉफ़ी स्टॉल शुरू किया गया है। रियासती वज़ीर कानून NMD फारूक ने चारशंबे के रोज़ इस स्टॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजकुमार गुनिया और ज्वाइंट कलेक्टर के कार्तिक भी मौजूद थे। NMD फारूक ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू अराको कॉफ़ी को खुसूसी अहमियत देते हुए इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और इसे रियासत के हर कलेक्ट्रेट में मुतारफ़ कराने का मकसद आवाम में इसके इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है। करनूल शहर में कांग्रेस क्रांति नायडू ने बाज़ाब्ता तौर पर ज़िला DCC सदर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। क्रांति नायडू आज एक बड़ी रैली की क़यादत करते हुए मुख्तलिफ लीडरों के मुजस्समों पर गुलपोशी की, जिसके बाद वो कांग्रेस पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने करनूल ज़िला DCC सदर का ओहदा संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को गाँव की सतह तक मजबूत किया जाएगा और पार्टी दफ्तर को आवाम के लिए हमेशा खुला रखा जाएगा और पार्टी ऑफिस पर रोज़ाना एक पार्टी नुमाइंदा दस्तयाब रहेगा। क्रांति नायडू ने कहा कि तालीम, बेरोज़गारी, सनती तरक्की, सेहत और पानी की किल्लत जैसे अहम मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ఈరోజు నూతనంగా నేను డీసీసీగా బాధ్యతలు చేపట్టడం జరిగింది. ఇప్పటి నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీని కర్నూలు జిల్లాలో గ్రామ స్థాయిలో బలోపేతం చేయడానికి ఒక కార్యాచరణ కూడా ఈ రోజునే చేపట్టడం జరిగింది. అదందరూ కూడా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తాం. రానున్న రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ ఇది ఒక పీపుల్స్ కాంగ్రెస్ ఆఫీస్గా మేము తీర్చిదిద్దుతాం. ప్రతి ఒక్క సమస్య మీద కూడా గలం వినిపిస్తాం. ప్రజలకు అన్ని విధాలకు కూడా అండగా ఉంటాం. तमिलनाडु के रामनाथपुरम में तारीखी वंबन रेलवे लिफ्ट ब्रिज 3 माह बाद दोबारा खुल गया है और शहरी व सयाहों ने इस नादिर मंजर का लुत्फ उठाया। पुल के खुलने से जहाज़ों के लिए रास्ता खुल गया है और ये मंजर लंदन के टावर ब्रिज, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज की याद दिलाता है। पेश है खास रिपोर्ट। तमिलनाडु के टीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने आम बजट के हवाले से अपनी मायूसी का इजहार किया। उनका कहना है कि उन्हें मरकजी बजट से कोई तवक्को नहीं है क्योंकि मरकज ने हर मरतबा तेलंगाना को नज़रअंदाज किया है। Well, the union government has been a hopeless government as far as Telangana is concerned because we have no hope on them.
The fact is, even the promises made in the State Reorganization Commission Act, which is a law, have not been implemented, have not been delivered upon. For instance, the steel factory, integrated steel factory in Bayaram did not come about. ITIR, which was promised by the UPA government, was not delivered. Navodaya schools, which are supposed to be given as per law, if a new district is formed, have not been delivered, not a single educational institution. Even Prime Minister Modi, no less a person than Prime Minister Modi himself, during his campaign in Telangana, had made a promise that Palamuru Rangareddy lift irrigation project will be given national project status. It's not been given. We've been asking for mega powerloom cluster status for Sirisila, my constituency, which is a textile town, for the last 10 years. Unfortunately, even that has not happened. So I have zero hopes on this union government. It is a hopeless government as far as Telangana is concerned. They only know what to take from Telangana, but they don't know what to give to Telangana. So I sincerely feel that this is an exercise in futility. It's absolute waste of time. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दाउस में लोरियल के सीईओ निकोलस से मुलाकात की। इस मौके पर बातचीत के दौरान हैदराबाद में भारी सरमायाकारी के साथ ब्यूटी टेक जीसीसी के क़याम के फैसले का ऐलान किया गया। इस जीसीसी के क़याम के साथ ही हैदराबाद लोरियल के लिए आलमी जिद्दत, टेक्नोलॉजी, डेटा और सप्लाई चेन की सरगर्मियों का अहम मरकज़ बन जाएगा। हिरोनमस ने कहा कि इस माहदे से आलमी कारोबार की सरगर्मियों के लिए हैदराबाद की अहमियत मज़ीद इजाफा होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जदीद तरीन मरकज़ का इफ्तिताह इस साल नवंबर में किया जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने लोरियल जीसीसी को हैदराबाद लाने के ख्याल में खुसूसी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। विशाखापट्टनम के ज़िला कलेक्टर एमएन हरिंद्र प्रसाद ने अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम में 31 जनवरी से शुरू होने वाले विशाखा उत्सव की शानदार पैमाने पर मुनक्किद करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि तकारीब में वज़ीर सेहत मेहमान खुसूसी होंगे। Curtain raiser event for Vishaka Utsav was launched here in Visakhapatnam in BMRDA Children's Arena. Honorable Tourism Minister was the chief guest for the curtain raiser event. Along with the Honorable Tourism Minister, we had participation from district in-charge ministers of Visakhapatnam, Anakapalli and Araku. We also had participation from the MPs of the district, the Honorable MLAs. As part of the Vishaka Utsav, we will be having a series of cultural and other activities starting from 24th of this month till 31st of this month here in Visakhapatnam. आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिनेश कुमार ने अरक्कू फेस्टिवल की तफसीलात से वाकिफ कराया। दिनेश कुमार ने कहा कि ये 3 रोज़ा फेस्टिवल होगा जो 30 जनवरी से शुरू होकर 1 फरवरी तक जारी रहेगा।